Good morning, class. So, till now, what we have studied finding inverse using elementary transformations. Elementary transformations can be row transformation or column transformation. So, till now, we have taken examples based on 2 by 2 matrices. Now, we will take some examples which are of 3 by 3 matrices. Now what we have to do, we have to find the inverse of the following matrix using elementary operation. Now it is written using elementary operation. They have not specified whether row or column. They have not specified this. Row operations we have to apply or column. So if you are applying row operation in the first step, you have to apply row operation throughout the process, throughout the question. If you are applying column operation in the first step, you have to apply column operation throughout. It is not like that in one step you are applying row operation, in another step you are applying column operation. So if you are applying row, we will apply row operations. If you are applying column operations, you will apply column. So just see, if we have to, this is your matrix A. If we have to apply the transformation, this is your matrix A. If we are applying a row operation, what we are having, A is equal to IA. I told you whenever we are applying row operations, we used to write A is equal to IA, and the operations are applied on A and I. Now A is what? Already given this matrices is A. So this will be your matrix A, 0, 1, 2, 1, 2, 3, second row, third row, 3, 1, 1. Clear? Next is what? Next is your I. I will also be an identity matrix of the same order, 3 by 3 order, A. Now we have to apply transformations. Now when we are applying the transformation, this is the first step we have to do. How much transformations we have to apply till we get on the LHS I, and RHS we get anything, because we have to apply on this and this only. So whatever, suppose I will change to some matrices B, it will be I is equal to BA. So B will be what? B is equal to A inverse. Why? Because we know that A into A inverse is only equal to I. Only it is I is possible when A is multiplied by A inverse. So this B will be what? A inverse. Clear? So just see now. First operation is what? Changing R1 to R2. Now just see, double arrows are there. That means what? R1 is changing to R2 and R2 is changing to R1. Clear? So just see what is R1. This is R2. This one, first one is R1. This one is R2. Now R1 and R2 are interchanging. That means what? The first row will become the second row. The second row will become the first row. Same way it will be applicable here also. This is your second row. This is your first row. Second row will come here. First row will come here. Clear? So just see 0, 1, 0, 1, 0, 0. Only interchange of both the rows. Then next what we are having operation, just see. Now in the next part, what we are having, apply R3 as R3 minus 3R1. Now you just see why we have done this. Just see, we are having 1 here, 0 here. For identity matrix, we want what? 0 here. We want 0 here. How we can bring 0 here? We are having 3. So 3 minus 3 times, if I do R1, 3R1, 3 minus 3R1. 3 is what? R3. So R3 minus 3R1 if I will do and change it to R3. So I will get 0 here. That's why I have done this. Why? I told you how you have to apply. You have to bring an identity matrices. You have to bring what? Identity matrix, each and every element. So we are having 1 already, 0 already. So we have to bring 0 here. So first step is what? This thing. Clear why we have applied this operation? Next is what? Same way we have to apply the operations here also. R3s, we have to change R3 only. Just see, R1 and R2 are the same. R1 and R2 just see are the same. Only operations will apply on R3. R3 is R3 minus 3R1. So R3 is what? 0 minus 3R1 minus 0. 0 yoga. 0 minus 3 into 0. 0. 0 minus 3 into 1. Minus 3. 1 into, 1 minus 3 into 0. 1 only. Clear? So next step is what? Next step, just see. Now what we have to do, we have to bring 0 here, because what we want, we are having these 3 things we have got. Now we want 0 here. How can I bring 0 here? By applying R1, changing R1 to R1 minus 2R2. If I change R1 as R1 minus 2R2, just see, R1 is what? 2 minus
2 times R2, R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2 into 1, 2 minus 2 क्या हो गया 0 आ गया, यहाँ भी चेंज होगा है ना, तो ये भी तो R1 है, इसमें भी तो चेंज होगा R1 as 1 minus 2 into 0 that is equal to 1 minus 0 that is equal to 1, तो 1 यहाँ आ गया। सेम वे इधर हम अप्लाई करेंगे, तो R1 कितना है, अगेन आई विल क्लियर इट अप, R1 कितना है 3, तो क्या लिखेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 3 minus 2 times R2, R2 कितना है 2, तो कितना हो गया 3 minus 4 that is equal to -1, हो गया R1 चेंज, ये 1 2 3 चेंज हो गया। सेकेंड रो देख लो एज इट इज है, थर्ड रो एज इट इज है। Here also we'll apply the same transformation. Clear? Here we don't have to see what is coming, we have to just see this matrices because we have to bring this matrices as an identity matrix. Now just see these 4 numbers are proper, this one is also correct, what we have to change either this or this. So you can apply anything, I told you it is not like that ki every student will apply the same transformation, it is up to you what you are going to apply. Then what we have done, just see after this what we have we are having, just see we have applied the transformation on this, here we have applied the transformation, we want to bring 0 here, clear, instead of -5 0, how we can bring R3 as R3 plus 5 R2, R3 as R3, ये R3 को change करेंगे as R3 plus 5 R2, clear, R3 plus 5 R2, clear, R3 as R3 plus -5 है ना ये, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या है, R3 कितना है, पहला वाला एलिमेंट क्या है, मैं वापस क्लियर कर देती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 है ना, R3 क्या है यहाँ पे, दिस R3 इज व्हाट 0 प्लस 5 टाइम्स R2 प्लस 5 टाइम्स R2 कितना है, सॉरी ये है इधर, पहले तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में क्या आ रहा है, ये वाला है ना, तो 5 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0, तो 0 प्लस 5 टाइम्स 0 इट विल गिव यू 0, तो R3 चेंज हो गया 0, ये आपका इधर ही आ गया 0 में। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एलिमेंट क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, R3 चेंजिंग टू R3 प्लस 5 R2, तो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 5 है, प्लस 5 टाइम्स R2, R2 कितना है 1 है, 5 into 1 that is equal to -5 plus 5 that is equal to 0, so you are getting 0 here. Same way R3, next क्या है R3 की एलिमेंट -8 plus 5 times R2 की एलिमेंट क्या है 2, 5 into 2, तो क्या हो गया -8 plus 10 that gives you +2, clear, तो ये आपका आ गया +2, clear, and same way the transformations will be applied here also, clear. Then next we have got 0, these all elements we have got, now we have to just change this. अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए, मुझे इस वाले एलिमेंट में तो 0 चाहिए, तो मैं 2 - 2 भी कर सकती हूँ है ना, या कोई और आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, you have to think, clear, that's it. Now what they have done, R3 as 1/2 R1, 1/2 R3, R3 को चेंज किया 1/2 R3, क्यों, क्योंकि ये 1/2 R3 करने पे ये दो एलिमेंट 0 ही रहेंगे, पर अगर मैं R3 को 1/2 R3 करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 into 2 that will be equal to what 1, so I have got one more element here, clear. Then next step, just see next step में क्या करेंगे हम, अब हमें क्या चाहिए, हम -1 और 2 ये दो एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है ना, हमें किन को चेंज करना है, -1 और 2 को चेंज करना है, तो हम एक साथ कर पाए तो एक साथ करेंगे, नहीं कर पाए तो हम एक एक स्टेप में करेंगे, तो कैसे करेंगे, जस्ट सी हमने पहले -1 को चेंज किया है, कैसे चेंज किया है, कैसे चेंज कर सकते हैं हम, अप्लाइंग R1 as R1 plus R3, मैं अगर R1 और R3 को ऐड कर दूं तो -1 plus 1 क्या आ जाएगा 0, 0 plus 0 क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा, 1 plus 0 क्या आएगा 1 ही रहेगा, तो मेरी कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होगी और मेरा यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा जो मुझे चाहिए, क्लियर। तो मैंने क्या अप्लाई किया, R1 as R1 plus R3, if I am applying R1 as R1 plus R3, so R1 plus R3 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, minus 1 plus 1 0, clear. Same way will apply here. Now only this element is left.
Now you have to keep this thing also in mind. If we are changing this element, rest element should not change, है ना. हमको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है जिससे सिर्फ ये एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और बाकी कुछ भी चेंज ना हो. तो जस्ट सी हाउ वी कैन डू दिस. क्या करेंगे हम, आप बताइए. इसको करना है मुझे. जस्ट सी हाउ वी कैन डू दिस. ओनली दिस एलिमेंट शुड चेंज. तो मैं अगर 0 माइनस 0 कितना आया, 0. 1 माइनस 0 0. 2 माइनस 1 2 माइनस, अब मैं अगर इसको कर दूं 2 माइनस R2, मैंने R2 को चेंज किया R2s, जस्ट सी क्लियर कर देते हैं, R2s R2 माइनस 2 R3. अगर मैं ये चेंज कर देती हूँ तो ये देखो क्या चेंज आता है. R2 को चेंज करना है, इसको चेंज करना है. R2 पहला एलिमेंट क्या है, 0 0 माइनस 2 R3, 2 टाइम्स 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 ओनली. तो आपका जो चेंज होगा वो मैट्रिसेस क्या आ जाएगी, यहाँ तो 1 0 0 ही रहेगा. R2 को चेंज कर रहे हैं, थर्ड भी 0 0 1 ही रहेगी. जो आपका सेकेंड रो है वो चेंज होगी, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 0 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू, यहाँ 0 आ गया. अब क्या आएगा, R2 क्या है 1, 1 माइनस 2 टाइम्स R3, 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, 1 ही रहा यहाँ पे. अब मैंने क्या किया, R2s R2 माइनस, तो R2 क्या है यहाँ पे 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 2 इंटू 1, तो क्या आ गया 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 आ गई. और कोई भी एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं आए. क्लियर. सो यू हैव टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वे. सेम वे हम इस पे भी अप्लाई करेंगे. तो जो इस ये वाला अप्लाई करने, ये वाला सॉरी यहाँ आगे स्टेप नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जब आप इस वाले पे भी अप्लाई करोगे तो जो मैट्रिसेस आएगी वो क्या होगी, इनवर्स मैट्रिसेस. क्लियर. जो हमें गिवन मैट्रिसेस है उसका इनवर्स होगा. क्लियर. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, these are very important questions. They have already come in CBSE exams. That's why I have taken these examples so that you will have practice also. Now, just see what the question is. They are saying, show that this satisfy the equation this. Clear? ये जो matrices है इस equation को satisfy करेगी. इस equation को satisfy करेगी मतलब क्या हुआ, x की जगह we can keep a, so it can be a square minus 6a plus 17. हमें पता है आई लेंगे, 17 इंटू 1 है ना, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस. अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है मतलब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i शुड बी इक्वल टू 0. अब इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. ये 2x2 मैट्रिसेस है. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, a इंटू a. तो ये a मैट्रिसेस है, गिवन है 2 माइनस 3 3 4, ये भी a मैट्रिसेस है. हमें पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो सॉरी दिस रो विद दिस कॉलम. सो 2 इंटू 2 4 है ना, माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 9. क्लियर. 4 प्लस माइनस 9 आएगा, तो 4 प्लस माइनस 9 क्या होता है, 4 माइनस 9 होगा. क्लियर. सेम वे सारे अपन निकाल लेंगे एलिमेंट्स. मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा ही है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन से आ गया a स्क्वायर. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड 6 टाइम्स a. 6 टाइम्स a क्या होगा, 6 a की एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सो 6 इंटू 2 12, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, 6 इंटू 3 18 and then 6 into 4 24. Clear. After that 6a also you have got a square also, the value of a square. Now 17i. ये मैंने बोला ना, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i. Now we know that when we are doing addition or subtraction all the matrices should be of the same order. तो अगर हम a मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो जो i मैट्रिक्स होगी वो भी 2x2 ऑर्डर की होगी. तो 17 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, 17 multiplied by each and every element. तो 17 into 1 17, 17 into 0 0, 17 into 0 0, 17 into 1 17. Clear. Now just add the equation. क्या क्या ऐड करेंगे, पहला आपका ये है a स्क्वायर, उसके बाद 6a सॉरी 17i और ये आपका है 6a.
ये तीनों वैल्यूज फर्स्ट, सेकेंड एंड दीज 3 वैल्यूज वी विल पुट इन दिस इक्वेशन। क्लियर? इस इक्वेशन में डालेंगे। डालते ही क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 आए। अब आपको पता है कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। पहले हमारा सब्ट्रैक्शन है, इन दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या साथ में ही एडिशन भी कर लेंगे। तो क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे -5 -12 प्लस 17, -5 -12 प्लस 17। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, -18 माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +18 और यहाँ पे +0। क्लियर? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सिर्फ क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो एलिमेंट्स को ऐड करने पे यहाँ इस वाले को देखो क्या आया, -5 -12 is -17, this is +17, 0, -18 +18, 0. So this will give you what, a zero matrix. That only we have to prove. Now this part was very simple, there was no problem in it. But just see, if I ask you hence find A inverse, what is written hence find A inverse? Hence find A inverse का मतलब क्या है, after getting this find A inverse. Hence find A inverse means होता है कि आप जो आ गया उसको यूज करके A inverse निकाला। ऐसे नहीं निकालना है कि A inverse मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से सिखाया तो उस तरीके से निकाला, नो। क्लियर? तो आपको ये इक्वेशन को यूज करके A inverse निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमने अभी देखा what we have proved, we have proved this equation as correct, a square minus 6a plus 17i is equal to 0। हमने भी प्रूव किया ना, a square minus 6a plus 17i is equal to 0। ये I2 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। I2 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। क्या? तो कंफ्यूज नहीं होना। I3 लिखा होगा तो कई जगह लिखते हैं आप I भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, बिकॉज ये अंडरस्टूड है। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सारी मैट्रिसेस एक ही ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर A 2x2 है तो ऑब्वियसली I भी 2x2 ऑर्डर की ही होगी। अब आप देखो इसको करना कैसे है, जस्ट सी, हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू -17i2। मैंने सिर्फ ये +17i2 को मैं RHS पे ले गई, तो वी विल गेट व्हाट, -17i2। now multiply both side by a inverse. This is the important step because we have to find what, a inverse using this equation. We have to find what, a inverse using this equation. Now what we have to do, pre multiply both side by a inverse। तो pre multiply मतलब आप multiply करेंगे पर आगे से multiply करेंगे, तो a inverse into a square minus 6a into a inverse, है ना, is equal to -17i2 into a inverse। अब आप इस इक्वेशन को देखो, a inverse into a square को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a square को मैं लिख सकती हूँ a into a square को मैं लिख सकती हूँ ना a into a, है ना। तो मैं अब a इनवर्स a क्या हो जाएगा, हमें पता है a इनवर्स a की वैल्यू होती है i, तो i a इंटू ये वैल्यू हो गई i, ये हो गया a, -6a इंटू a इनवर्स, a इंटू a इनवर्स की वैल्यू फिर से क्या होती है i, अभी हमने पढ़ा था, -6i इज इक्वल टू I multiplied by any matrices is that matrix is only -17 times A inverse। ठीक है, अब हमें पता है A की वैल्यू क्या है, हमें दी हुई है I into A कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 multiplied by any number क्या होता है, that number only। same way आइडेंटिटी मैट्रिक्स multiplied by any matrices gives you that particular matrix। A minus 6i is equal to -17 A inverse। ये इक्वेशन आ गई, इससे आप A इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको A पता है, A क्या मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स क्या है, देखो इधर। अब अपन को पहले -17 भी इधर ले आते हैं, तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस इक्वेशन में, सॉरी, अब मैं इस -17 को अगर इधर लाती हूँ तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ कर दिया 17 और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकती हूँ ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -17 हट जाएगा, मैं इस तरफ ले आई, ला सकते हैं ना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। क्लियर? सो जस्ट सी, यू आर हैविंग दिस इक्वेशन, -a माइनस ऑफ माइनस, तो +6 आए, तो आपका क्या आ जाएगा, a इनवर्स की वैल्यू आपकी आ गई, a इनवर्स की वैल्यू आ गई, a माइनस टाइम्स दिस करो, या फिर इस वाली इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6i माइनस a 1/17 लिख सकते हैं ना। माइनस दिस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 6i आगे आ गया, -a बाहर चला गया।
ठीक है, तो यही लिखा हुआ है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 6i 2 माइनस ए। i2 क्यों लिखा है, क्योंकि इनवर्स है। अब i की वैल्यू हमें 6i2 की वैल्यू हमें पता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर कर देती हूँ सारा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 ऑर्डर की 1 0 0 1। तो 6 टाइम्स i क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स दिस हो जाएगी 6 0 0 6। तो 6i2 माइनस ए, माइनस टाइम्स ए की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2 माइनस 3 3 4। ठीक है, अब हमें पता है इंटू 1/17 ये होल है, ये पूरा है। ठीक है, 1/17 ऑफ, अब 6 माइनस 2 कितना हो गया 3, सॉरी 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, सॉरी हाँ 6 माइनस 2 आपका हो गया 4। 0 माइनस ऑफ -3 यहाँ आ गया 3, 0 माइनस 3 -3, 6 माइनस 4। क्लियर, आप देख सकते हो 4 3 माइनस 3 2, 4 3 माइनस 3 2, 1/17, this is the inverse. Clear, now you have not applied any transformations, you have not used any transformation, so this is another method to find inverse if an equation is given. And if they have already said use this, then you have to use it and then find the inverse. Only you have to do what, in that equation you have to multiply on LHS and RHS both by a inverse. ठीक है, a inverse से multiply करेंगे and solve करेंगे. Clear, then comes the next question, just see. Now just see what they have given. They have given an equation where what they have written, just see, it's very important again. A is a 2x2 matrix given. Show that a square minus 4a plus 7i is equal to 0. This we have already done. Same way we will do. First of all, first step will be what, find a square. A into a करके हम क्या निकालेंगे, step 1 होगा a square, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, 4a निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स a। थर्ड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 7i निकालेंगे। I matrices will be a matrix of order 2। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐसे ही इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे। a स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे माइनस 4a की वैल्यू, देन प्लस 7i, एंड वी विल गेट व्हाट, अ जीरो मैट्रिक्स। क्लियर, ये तो हमारा हो जाएगा। अब वो बोला यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a to the power of 5। if it is not clear what they are asking, they are asking the value of a to the power of 5। now just see what we have to do। कैसे निकालेंगे, पहला तो वही है जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ये हमने सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ना, मल्टीप्लिकेशन आता है, ये -4a की वैल्यू -4 into a plus 7 into I, and we have got this zero matrix। this is very simple, in all the questions we are doing the same। clear, then the important thing is they are saying find the value of they are asking you to find the value of a to the power of 5। इस पे आ जाओ आप, a to the power of 5। क्लियर, a to the power of 5 कैसे निकालेंगे हम, ये देखते हैं। हमें ये इक्वेशन गिवन है ना, हमने अभी प्रूफ की कि ये करेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i। है ना, हमने क्या किया, 4a एंड 7i को उस तरफ ले गए, तो -4a उधर जाके हो जाएगा +4a, प्लस 7i उधर आके -7i। अगर a स्क्वायर की वैल्यू ये है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, देन इफ आई एम प्री मल्टीप्लाइड बाय a इन द होल इक्वेशन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो गया a क्यूब, है ना, a इंटू ए स्क्वायर, LHS पे हो गया a क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 7i इंटू ए। अब इससे हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a क्यूब की, क्योंकि a स्क्वायर तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, अभी लास्ट जो इसका पहला पार्ट था इसमें हम कैलकुलेट कर चुके थे, क्या है 4 टाइम्स a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये है ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i, तो a स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, a स्क्वायर एज 4a माइनस 7i, 4a माइनस 7i माइनस 7i। क्लियर, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16a माइनस 4 7 जा 28i माइनस 7a। क्लियर, तो कितना आ गया, 16a माइनस 7a कितना आया, 9a माइनस 28i। क्लियर,
अब आप देखो ए क्यूब की वैल्यू क्या आई, 9a माइनस 28 आए, यही अपनी भी आई, ए क्यूब की वैल्यू क्या आई, 9a माइनस 28 आए। क्लियर, ये आपका आ गया ए क्यूब, अपना ए क्यूब आ गया। अब इसी इक्वेशन को मैं अगर पूरी इक्वेशन को वापस से ए से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को एलएचएस आरएचएस दोनों में, तो ए टू द पावर ऑफ 4 हो गया, 9 इंटू ए स्क्वायर, 28 ए इंटू आई, तो क्या आ गया, ए टू द पावर 4 की वैल्यू हो गई 9a स्क्वायर माइनस 28a। अब हम वापस से इधर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4a माइनस 7i, तो 9 टाइम्स 4a माइनस 7i माइनस 28 है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 सा, इसमें डायरेक्ट लिख दिया अपन, मल्टीप्लाई कर दे, 9 4 सा 36a माइनस 9 7 सा 60, सॉरी 9 7 सा 63 आई, ये आपका आ गया 63 आई, है ना, एंड देन माइनस 28 ए। तो 36 माइनस 28 ए कितना हो गया, 36 माइनस 28 होता है 8 ए, है ना, 36 28 28 29 30 एंड 6 6 प्लस 2 8 8a माइनस 63 आई, यही आ रहा है आपका ए टू द पावर ऑफ 4 क्या आया, 8a माइनस 63 आई। नाउ अगेन after this again multiplied the whole equation by a, so what you will get here, you will get a into a to the power of 4, a to the power of 5 जो हमें निकालना है, 8a square, again put a square as 4a minus 7i, तो क्या आ जाएगा 8 times 4a minus 7i, clear, minus 63a, कितना हो गया, 8 4 सा 32a minus 8 7 सा 60, सॉरी 56, 8 7 56 आई माइनस 63 ए, कितना आ गया ये, 32a माइनस 63a 31a, साइन क्या आएगा माइनस का, बिकॉज 63 इज अ बिग नंबर, माइनस 56 आई, यही आ रहा है आपका a टू द पावर ऑफ a क्या है, माइनस 31a माइनस 56 आई। नाउ ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में, a की वैल्यू गिवन है, i की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम जस्ट पुट कर देंगे माइनस 31, a की वैल्यू ये है गिवन है, देन माइनस 56 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। नाउ जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई 31 विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, क्या आ गया माइनस 31 इंटू 2, कितना आ गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, साइन माइनस 3 1 जा 3 3 3 जा 9, again minus sign minus 93, 31 into minus 31 will be plus 31, and 31 into 2 again will be 62, and then sign will be minus, और minus 56 आए, क्या हो जाएगा minus 56 आए 56 0 0 56, ठीक है। अब हमें पता है इनको कैसे करना है, माइनस 62 माइनस 56 कितना आ गया, माइनस 118, माइनस 93 माइनस 0 माइनस 93, 31 माइनस 0 31, देन 6 माइनस 62 एंड माइनस 56 माइनस 118, so this is your answer, clear, a to the power of the value of a to the power of 5. Is that clear everyone? Is that clear? Now come to the next question. If it is clear, then only we will move to the next one, otherwise not. If it is clear, just say, okay. If you have any problem, please ask. Now just see. These are questions based. We'll do these question 1, 2. How many are there? They are actually same type of questions. So I want you to do it, because we'll do it all together. Otherwise, what will happen? You won't be able to understand. If I will start with one question today, then second, third, all the 3 questions are the same using induction. So I want you to learn it properly. That's why we'll do it tomorrow. By that time, what we have done today is, we know how to find the inverse of a 2 by 2 matrix. We know how to find the inverse of a 3 by 3 matrix. है ना, हमने क्या क्या निकाला, 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, हमने 3 by 3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकालना सीखा, उसके बाद हमने क्या निकालना सीखा, फाइंडिंग इनवर्स
if an equation is given, if an equation like suppose this equation is given a square minus, suppose this equation is given a square minus 4a plus 7i is equal to 0. Now I ask you to find inverse a inverse. तो क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन से आपको बोलूं इनवर्स निकालो, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, जस्ट सी, इस पूरी इक्वेशन को आई विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय ए इनवर्स. ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, कर सकते हैं ना हम दोनों साइड, अगर हम एलएचएस और आरएचएस पे दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हार्डली मैटर्स. तो क्या आ जाएगा, हम देख लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, है ना, माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स. क्लियर. तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इरेज कर देती हूँ इसको, ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए लिख सकती हूँ ना, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकती हूँ. तो ए इंटू ए इनवर्स कितना आ गया, आई. तो ये वैल्यू हो गई ए एज इट इज, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हो गई आई, माइनस 4a इंटू ए इनवर्स, अभी बता ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई माइनस 4i प्लस identity matrix multiplied by any matrices gives the same thing, 7a inverse. 0 matrix multiplied by any matrix will give you what, 0. तो अब यहां से अपना आ गया a inverse की वैल्यू क्या आ गई, 7a inverse is equal to कितना आया, ai, a into I will be what, ये मैं 7a inverse को यहीं रख रही हूँ, मैं बाकी पूरी को उधर ले जा रही हूँ. तो माइनस 4i वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4i माइनस a इंटू आई कितना होता है, a होती है. ठीक है, माइनस 4i, तो वहां 7a इनवर्स यही है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा. तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, नाउ a इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, डिवाइडेड बाय दिस होल डिवाइडेड बाय 7. नाउ यू ऑल नो हाउ टू सबट्रैक्ट टू मैट्रिसेस. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 4 0 0 4 माइनस ए मैट्रिक्स क्या है अपनी, 2 3 माइनस 1 2, है ना. अब होल डिवाइडेड बाय 7. ठीक, अब इनको सबट्रैक्ट करना हमें आता है, मैं यहाँ का पार्ट इरेज कर देती हूँ. ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने ए इनवर्स निकाला था, है ना. तो डिफिकल्ट नहीं है, these questions are not difficult, but in exam the same type of questions are going to come, so please keep this thing in mind. So what we are having, when we are subtracting, corresponding elements are subtracted. 4 minus 2 कितना आया, 2, 0 minus 3 minus 3, 0 minus of minus 1 plus 1, 4 minus 2 2, ये डिवाइडेड बाय 1 by 7 है ना. आप इसको ऐसे भी छोड़ दे सकते हो, ये इनवर्स की वैल्यू ही, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको मैट्रिक्स को लिख सकते हो 2 by 7 माइनस 3 by 7 1 by 7 2 by 7. हमने क्या किया, 1 by 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर है. ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, हमने ए इनवर्स निकाला था. ठीक है ना, इसमें ए इनवर्स निकाला था ना क्वेश्चन में, फाइंड ए इनवर्स बोला था. अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको बोल दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर ऑफ 4, कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमने ये प्रूव कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i2 इज इक्वल टू 0. हमने क्या प्रूव किया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i2 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव किया हमने. अब मैं क्या ले सकती हूँ, हम ले सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू इज एज 6a माइनस 17i2 लिख सकती हूँ ना मैं, जस्ट आई हैव टेकन द these two things that side. क्लियर. अब ए स्क्वायर की वैल्यू है, अब पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, एलएचएस से भी और आरएचएस पे भी. तो क्या हो गया, ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 17i टाइम्स ए, है ना. सेम वे अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6a माइनस 17i. क्लियर. ऐसे ही फिर पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा a टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगा. क्लियर, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर. सो दीज आर व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दीज क्वेश्चंस, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस.
in exams every time, every year, these type of questions are coming from years. So please keep this thing in mind. And next, rest 2-3 questions are left that we will do in the next class, because if we will start, we won't be able to finish it up. It's time actually. Yeah. If we do also, then also we won't be able to finish it up. There are some different type of question. They are based on solving the matrices using induction. Solving the matrices using induction method, mathematical induction method. Yeah. So I won't be able to explain you completely in this class, because we have less of time left. So we'll do that. But before that, please complete exercise 3.4 and do the miscellaneous. If you want, you can do miscellaneous exercise or some more questions based on it from other books also. Any book you have. Yeah. And please maintain the notebook. Do each and every question of each, all the exercises. We have done all the 4 exercises. This is the last exercise, and tomorrow will be the last class for this matrices. Yeah. Please finish it up, otherwise you will face problem. Do each and every question which we are doing, that question also, and the exercise questions also. Clear? Do all the questions we have done plus the exercise question, all 4 exercise questions, so that your practice will be there. Clear? Okay. Thank you, class.